Okay. Okay, students, today we will study about MIS in the ward, right? What is MIS in the ward? MIS, as we know, that it's a management information system. It's a complete software system which has various integrated other software modules which are essential for a hospital. So here we are studying MIS in the ward. The software modules, the collection of software modules, which is in means responsible for making a complete environment in a ward system, in healthcare ward system. So in contemporary healthcare, the efficiency, safety, and responsiveness of hospital ward depend heavily on the quality of information available to decision makers. See what is here? It is saying that in healthcare, the ward plays a very important role, right? Where patients are admitted, that is called wards. So in hospital wards, if you have quality information, right? Quality information means the information must be correct, complete, right? Updated. So if a quality information will be available in the hospital wards, then it will be effective to the decision maker. Decision makers are, who are the decision makers? The decision makers can be any managerial person, any strategic level person who creates the policies or strategy for the organizations. That person can be any employee also who wants to take decision on the basis of that information, right? The person related to that hospital wants to take some decision regarding the hospital on the basis of that the information available in that hospital ward. So it means that information should be or must be quality information, right? So quality information will be provided by this MIS software. Every shift, ward nurses and administrator juggle a complex web of patient care tasks. As we know this, every time so many patients are there, so many tasks are there, right? If we say in a hospital system, the more complicated task in the hospital ward only. Staff coordination is needed there, resource allocation is needed there, compliances requirements are there, right? So without a structured way to collect, process, and interpret this information, even the most skilled teams can face delays, error, or missed opportunities to improve outcomes, right? It is saying that, इसका कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि हॉस्पिटल वार्ड्स एक किसी भी हेल्थ केयर सिस्टम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वार्ड है. अगर देखा जाए तो सारे इसेंशियल और कॉम्प्लिकेटेड टास्क और बहुत ज्यादा आपस में टेंजिबल जो टास्क हैं वो हॉस्पिटल वार्ड्स में ही होते हैं, बिकॉज पेशेंट इज देयर, राइट? होल हॉस्पिटल इज सेंटर्ड ऑन द पेशेंट्स. तो पेशेंट की सारी इंफॉर्मेशन, स्टाफ का कोऑर्डिनेशन, रिसोर्स का एलोकेशन, जितने भी कंप्लायंसेस हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं, जितने भी डिस्चार्जेस की समरी है, कोई अगर इंश्योरेंस लीगल चीजें हैं वो भी वहीं से पेशेंट से ही होके आती हैं. तो वो सब चीजें इसी हॉस्पिटल वार्ड पे मिलती हैं. तो इस तरीके से अगर वहां की इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर्ड वे में होगी, एक स्ट्रक्चर्ड वे में अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो इट इज मींस वी कैन से इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड. इट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर एनी स्किल्ड पर्सन, चाहे वो कितना भी स्किल हो, चाहे कितना भी स्किल्ड पर्सन हो, वो क्या कर सकता है? एरर कर सकता है, राइट? हॉस्पिटल वार्ड में एरर हो सकती है चाहे कितना भी स्किल्ड टीम हो, ठीक है? क्योंकि मैनुअली जब काम हो रहा है तो इस इंफॉर्मेशन पे डिले भी हो सकता है, एरर्स भी आ सकती हैं, मिस्ड भी हो सकती है कुछ अपॉर्चुनिटीज, जिससे हमारा आउटकम जो होता है वो इफेक्टेड होता है जब मैनुअली काम होता है हॉस्पिटल वार्ड्स में. बट अगर हम एक MIS सेटअप कर देते हैं, MIS सिस्टम इन द वार्ड सेटिंग provides an integrated digital framework that unites clinical, administrative, and operational data into a single accessible platform. It means that अब आपके पास, अगर आपने MIS सेटअप कर लिया अपने हॉस्पिटल वार्ड में, तो आपके पास एक सिंगल एक्सेसिबल प्लेटफॉर्म है और उसी प्लेटफॉर्म में आपको ये सारी ऑपरेशनल डेटा एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा. और ऑफ कोर्स डेटा आपका अपडेटेड होगा, क्विक रिस्पॉन्सिबल होगा, रियल टाइम डेटा होगा. रियल टाइम मीन्स आप जब भी उस चाहे डेटा को किसी भी वक्त एट एनी मोमेंट आप उस डेटा को एक्सेस कर सकते हो, बिकॉज ऑटोमेटिकली इट इज गोइंग टू सेव ऑन द डेटाबेस, राइट? अगर सारा सॉफ्टवेयर सिस्टम से काम हो रहा है, अगर इवन डिजिटल
तरीके से पेशेंट की बिलिंग भी हो रही है, तो जब डिजिटली बिलिंग होती है तो ऑटोमेटिकली वो डेटाबेस में भी सेव होता रहता है। अगर कोई पेशेंट रजिस्टर्ड हो रहा है, डिजिटली वे में रजिस्टर्ड हो रहा है अपने आप में, तो ऑटोमेटिकली वो कहाँ हो रहा है, डेटाबेस में भी सेव होती जा रही है सारी इंफॉर्मेशन। मैनुअली कुछ काम करने की जरूरत नहीं है कि आप फॉर्म कलेक्ट करिए और मैनुअली सॉफ्टवेयर में फिल करते रहिए। वो मैनुअल फीचर इंजीनियरिंग होता है, मैनुअल काम होता है और वो एरर प्रोन होता है, राइट? वो एरर प्रोन होता है। बट यहाँ पर क्या है, अगर आपने एक सॉफ्टवेयर सिस्टम ऐसा सेटअप कर दिया अपने वार्ड के लिए, हॉस्पिटल वार्ड के लिए, एक एमआर सिस्टम है जिसमें ये सारे सॉफ्टवेयर के मॉड्यूल्स हैं, जिसमें पेशेंट से रिलेटेड जितने भी वहां पे कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो रहे, वो टास्क सारे अब ये सॉफ्टवेयर हैंडल कर रहे जो इस एमआरएस के साथ इंटीग्रेटेड है। तो उससे क्या होगा, एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म में सारा डेटा मिल रहा है, दो उसके कंपोनेंट्स अलग अलग हैं पर एनवायरमेंट इंटीग्रेटेड है। इट ट्रांसफॉर्म्स फ्रैगमेंटेड इंफॉर्मेशन, पेशेंट एडमिशंस, क्या क्या इंफॉर्मेशन ये ट्रांसफर कर सकता है और एक दूसरे में मॉड्यूल आपस में इंटरैक्ट भी कर सकते हैं। ये ट्रांसफर फ्लो होता है इंफॉर्मेशन का। यहाँ पे पेशेंट के एडमिशन की सारी समरी, डिस्चार्ज टाइमलाइंस, मेडिकेशन रिकॉर्ड्स, स्टाफिंग रोस्टर्स, इन्वेंट्री यूजेस, write all these tasks into coherent actionable insight. Coherent actionable insight means all are coherently adjusted on a single platform. Coherent means one module is depend on the other modules, means the output of one module will be or can be the input for other modules. एक मॉड्यूल से जो आउटपुट निकला है, हो सकता है वो दूसरे मॉड्यूल के लिए इनपुट का काम करे। तो इस तरीके से इसमें इंफॉर्मेशन फ्लो भी होता है। तो सारी यहाँ पे आपको पेशेंट की सारी रिकॉर्ड्स मिल जाता है और इस तरीके से जो यहाँ पे एमआरएस सिस्टम पे काम हो रहा है, तो वो काम आपको एक क्वालिटी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। By doing so, it empowers ward leader to make faster evidence-based decision. तो इससे क्या होगा, जो वार्ड लीडर है, वार्ड लीडर के अलावा और भी जो भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं इन सॉफ्टवेयर से, और बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन दे कैन टेक एनी डिसीजंस फॉर फर्दर एक्शन, राइट? कोई डिसीजन लेना चाहते हैं कि आगे क्या एक्शन किया जाए, तो एक क्विक इंफॉर्मेशन उनको अवेलेबल हो जाती है इन एमआरएस के सॉफ्टवेयर सिस्टम से। तो अब वो कोई भी डिसीजन एविडेंस बेस्ड डिसीजन ले सकते हैं, राइट? तो वो डिसीजन अगर ले रहे हैं और अगर उनसे पूछा जाए कि डिसीजन किस बेसिस पे लिया है, तो दे कैन शो द एविडेंस क्विकली ऑन दैट टाइम। दैट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस पेशेंट सेफ्टी, क्वालिटी ऑफ केयर एंड स्टाफ एफिशिएंसी। तो ये सारी चीजें जो है एक्चुअल में जितना भी हम सेटअप कर रहे हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स आप पढ़ रहे हो, जो भी ऑटोमेटिक चीजें हम डिजाइन कर रहे हैं यहाँ पर, ये अल्टीमेटली सारा पेशेंट केयर के लिए ही काम हो रहा है, राइट? तो ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है पेशेंट की सेफ्टी और क्वालिटी ऑफ केयर, स्टाफ एफिशिएंसी, राइट? तो पहले आप देखते होंगे, आपने सुना भी होगा, तो काफी एरर्स प्रोन चीजें बहुत होती थी हॉस्पिटल्स पे, जो कि काफी हॉस्पिटल्स पे पेशेंट्स को अगर पता चल जाए तो क्लेम भी कर देते थे पेशेंट्स। और बट अब क्या होता है, सॉफ्टवेयर सिस्टम के थ्रू ये सारी चीजें एरर प्रोन नहीं है, लेस एरर है, राइट? बिकॉज कोई भी चीज अगर आप पेशेंट क्लेम करने की कोशिश करता है या डॉक्टर, कोई भी कैओस होता है दोनों के बीच में, तो डिजिटली सॉफ्टवेयर पे सारा कुछ रिकॉर्डेड होता है, तो दे कैन शो, राइट? और रूल्स रेगुलेशंस आल्सो एरियर्स, तो वो भी वहां पर सारे कॉम्प्लायंसेस हम फॉलो करके चलते हैं। तो इससे क्या होता है, पेशेंट की एफिशिएंसी और पेशेंट की सेफ्टी बढ़ती है, पेशेंट की केयर बढ़ती है और स्टाफ की एफिशिएंसी बढ़ती है। तो इसलिए एमआईएस यहाँ पर एज ए वार्ड के लिए बहुत ही यूजफुल हो सकता है एज ए क्वालिटी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो अब वार्ड लेवल के अगर कोर कंपोनेंट देखें एमआईएस के, सपोज हम एमआईएस सेटअप करना चाह रहे हैं हॉस्पिटल अपनी वार्ड के लिए, तो क्या कोर कंपोनेंट्स होंगे, क्या चीजें होनी चाहिए उसमें? कंपोनेंट्स मतलब किन चीजों से मिलकर बनेगा ये एमआईएस, कौन कौन से सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स आपको वहां पे जरूरी होंगे? A ward level management information system is designed to capture, process, store and disseminate clinical and administrative information specific to patient care unit within a hospital, right? It serves as a bridge between besides care activities and hospital-wide information system. It is just like a bridge. Why it has said as a bridge? Bridge means besides care activities तो हो ही रही है और हॉस्पिटल की एक वाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम भी अवेलेबल बनता जा रहा है। हॉस्पिटल का वाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम मीन्स, इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब यहाँ पे वो सॉफ्टवेयर हैं जिन पे डेटा सेव होता जा रहा है। अभी तो हेल्प मिल रही है क्विक एक्सेस, पर साथ साथ वो डेटा सेव भी हो रहा है
और आपका एक स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन सिस्टम बन रहा है। इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब आज की जो इंफॉर्मेशन है, हो सकता है आप 1 साल बाद देखें, 2 साल बाद, 4 साल बाद, तो वो सारी सेफ वे में चल रही हैं और बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन आप आगे भी कोई डिसीजन ले सकते हैं। तो वो एक आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम बनता जा रहा है। इनेबलिंग टाइमली डिसीजन मेकिंग, जिससे कि डिसीजन मेकिंग में काफी हेल्प मिलती है। एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, आपके जितने भी रिसोर्स हैं उनका एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन हो रहा है और पेशेंट का एक एनहेंस आउटकम आता है, राइट। तो क्या क्या वो मॉड्यूल्स हैं यहाँ पर दिखाए हुए हैं, जैसे कि पहला मॉड्यूल है पेशेंट्स एडमिशन, ट्रांसफर एंड डिस्चार्ज मॉड्यूल, जैसे एडीटी मॉड्यूल भी बोलते हैं शॉर्ट में। इट्स एन एडीटी मॉड्यूल। ये मॉड्यूल अपने आप में ये सारे काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है ये? जैसे कि एडीटी एडमिशन, ट्रांसफर, डिस्चार्ज, वो खुद ही बता रहा है क्या करेगा। रिकॉर्ड पेशेंट्स डेमोग्राफिक डिटेल, कहाँ से आया है, कौन है, क्या है, एज है, एवरीथिंग। एडमिशन डेट्स, डायग्नोसिस, बेड असाइनमेंट्स, ट्रैक्स इंट्रा हॉस्पिटल ट्रांसफर्स बिटवीन वार्ड्स और डिपार्टमेंट्स, अगर एक वार्ड से दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया हुआ है या हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल आपने शिफ्ट किया हुआ है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को रेफर किया हुआ है, तो वो सारा वहां पर ट्रैक होता रहता है रिकॉर्ड्स। जनरेट डिस्चार्ज समरीज, फाइनल बिल्स एंड बेड अवेलेबिलिटी अपडेट्स। तो इस मॉड्यूल पे आपको ये सारे फंक्शंस मिलेंगे। तो ये ऐसा सॉफ्टवेयर मॉड्यूल होगा जो ये सारे फंक्शंस को कैरी करेगा अपने आप में और सारे फंक्शंस ऑटोमेटेड करता रहेगा, राइट। तो ये एक बहुत बड़ी हेल्प होती है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के लिए भी, क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स के लिए भी, राइट, और ऑफ कोर्स पेशेंट की सेफ्टी के लिए भी। ये एक मॉड्यूल है। सेकेंड मॉड्यूल यहाँ पे कहता है इलेक्ट्रॉनिक पेशेंट रिकॉर्ड, जिसमें कि आप क्लिनिकल डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। ये अपने आप में एक अलग मॉड्यूल है जो कि चार्टिंग ऑफ वाइटल साइंस, मतलब राइट, क्लिनिकल नोट्स वहां पे रखता है, नर्सिंग असेसमेंट के लिए होता है, केयर प्लान्स के लिए होता है, राइट। कोई भी नर्स उसको एक्सेस कर सकती है अपने फर्दर एक्सेस के लिए, अभी क्या मेडिकेशन देना उसमें देख सकती हैं। मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड विद डोज और टाइम स्टैंपिंग, मेडिकेशन का क्या क्या रिकॉर्ड्स है, हर एक पेशेंट का पेशेंट नंबर होता है, उसके साथ मेडिकेशन रिकॉर्ड्स उसमें डालते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपके डेटाबेस में जुड़ता रहता है। कल ये दिया था, आज ये दिया था, 6 डेज का ये है, बीपी इतना था, रिकॉर्ड होता रहता है, राइट। अब तो मैनुअली भी करते हैं इसको, एक ऑडिटर ऑपरेटर भी होता है, मैनुअली भी किया जाता है, बट कुछ सेंसर्स की हेल्प से, ऑटोमेटिक टूल्स की हेल्प से, IoT, जैसे मैंने आपको एक चीज और समझाई थी, IoT जो थी आपकी इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोला जाता है इसको। IoT अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और मेडिकल से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। IoT का मतलब होता है जब आप इंटरनेट टेक्नोलॉजी को इन थिंग्स पे जोड़ के अपना काम करते हैं, राइट। सेंसर्स लगा दिए, चीजें लगा दी, उसमें ऑटोमेटेड होने लगा काम, तो उसको IoT बोला जाता है। IoT अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट भी है कंप्यूटर साइंस का, राइट। तो इंटीग्रेटेड विद फिजिशियंस, ऑर्डर्स, प्रोग्रेस नोट्स एंड अलाइड हेल्थ डॉक्यूमेंटेशन। तो इस मॉड्यूल में आपको ये सारे टास्क मिलेंगे। तो ये मॉड्यूल इन सारे टास्क को के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये सारा काम इस मॉड्यूल पे होगा। तो हम जो ये पढ़ रहे हैं ये एक MIS के कंपोनेंट्स हैं और वो MIS अभी कहाँ के लिए हो रहा है सेटअप? एक वार्ड के लिए, राइट, हॉस्पिटल वार्ड के लिए। क्वेश्चन कैन कम इन सच अ वे, how you design an MIS for a hospital ward, or describe in detail the designing of an MIS in a hospital ward, how to automate a hospital ward. So that times you have to write all these components. These components are very crucial for any hospital ward. So MIS system will coordinate with all these modules, must have all these modules, and these modules have such kind of task, must have such kind of task, right? Third is nursing and care workload management. This is a separate module for nurses and care workload. Patients acuity, scoring of for optimal nurse to patient assignments, shift-wise task allocation and checklist, reminders for routine observations, procedures और therapy schedulers, right? तो ये सब चीजें जो नर्स के वर्कलोड मैनेजमेंट के लिए होता है, उनका शेड्यूलिंग करना, शिफ्टिंग करना, किसको कौन पेशेंट असाइन किया गया है, सुबह की शिफ्ट कितने बजे से कितने बजे तक की है, राइट, क्या क्या टास्क एलोकेट किए हैं आपने किस किस नर्स स्टाफ को अपने, रूटीन ऑब्जर्वेशन में का कौन रिमाइंडर देगा, क्या प्रोसीजर्स है,
थेरेपी के शेड्यूल्स क्या क्या है, क्या क्या थेरेपी कब कब पेशेंट को देनी, तो एवरीथिंग, राइट। तो ये सारी चीजें अगर आपको एक ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर में मिल जाए जो टाइम टू टाइम आपको एज एन अलर्ट बताए, एज एन इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए आप उसमें जाके देख सकते हो, तो इट्स अ वेरी बिग हेल्प फॉर द हॉस्पिटल मैनेजमेंट टीम. Next is diagnostic and laboratory information interface. It means electronic ordering of lab, imaging and diagnostic test, जो कि आपके यहाँ पे टेस्ट होते हैं. जैसे यहाँ पर एक टेस्ट दिया है कंप्यूटर फिजिशियन ऑर्डर एंट्री, CPOE, right? So these kinds of laboratory information interface are there, means related to labs, right? Tests are there. Real-time access to results from LIS. LIS means laboratory information system. मीन्स लैब को जो ऑटोमेटेड आपने किया है, तो लैब में जो भी आपने टेस्ट करने के लिए भेजा, उस टेस्ट का रिजल्ट इस सॉफ्टवेयर में अपडेट कर देते हैं वो लोग. ठीक है, जो भी टेस्ट कर रहे हैं उसका टेस्ट का जो भी रिजल्ट निकल के आया, उसको यहाँ पे इस LIS सॉफ्टवेयर में अपडेट कर दिया जाता है. अब यहाँ से इंफॉर्मेशन रियल टाइम कभी भी ले सकता है, पेशेंट भी ले सकते हैं उनको अगर एक्सेस है तो, और नहीं तो हॉस्पिटल मेंबर्स जो भी जिनको अथॉरिटी है, they can take information from this information system. And RIS, PACS, RIS means for radiology information system and PS for picture achieving or communication systems. So sometimes it can be needed, right? आप पेशेंट डायग्नोस करने जा रहा है सपोज किसी और डिपार्टमेंट में, तो वहां पे भी इनकी जरूरत पड़ेगी, तो दैट डिपार्टमेंट विल डायरेक्टली कम्युनिकेट विद दैट इंटरफेस. तो यहाँ से वो डिजिटली फॉर्म पे इन चीजों को एक्सेस कर सकते हैं. फ्लैगिंग ऑफ क्रिटिकल वैल्यूज फॉर इमीडिएट क्रिटिकल अटेंशन. अगर कोई इमीडिएट क्रिटिकल अटेंशन चाहिए तो एक फ्लैगिंग ऑफ क्रिटिकल वैल्यूज का मतलब होता है आपको एक अलर्ट, एक वार्निंग, एक फ्लैग दिखाई देने लगता है टाइम, जैसा अलार्म होता है ना, इसी तरीके से फ्लैगिंग ऑफ क्रिटिकल वैल्यूज इमीडिएट क्लिनिकल एक्शन लेने के लिए. तो उससे क्या होता है, पेशेंट की सेफ्टी हो जाती है. अगर टाइमली, मेडिकल में तो है ही कि अगर टाइमली कोई डायग्नोज हो जाता है, टाइमली कोई करेक्ट एक्शन लिया जाता है, तो वो पेशेंट के लिए हमेशा बेनिफिशियल होता है. और अगर कोई हॉस्पिटल केयर में इस तरीके की हम चीजों को इन्वॉल्व कर रहे हैं जिसमें इमीडिएट एक्शन लिया जा सकता है और इमीडिएट ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, तो ऑफ कोर्स पेशेंट केयर और अच्छी होती जाएगी, तो जिससे हॉस्पिटल को बेनिफिट मिलेगा, तो हॉस्पिटल की एफिशिएंसी बढ़ेगी, राइट. तो वहां पर फिर हेल्थ केयर सिस्टम भी बढ़ेगा, हॉस्पिटल की एफिशिएंसी बढ़ेगी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से हॉस्पिटल को फायदा होगा, फाइनेंशियली वे पे भी होगा और उनका एफिशिएंसी इंप्रूव करने पर भी होगा. तो ये MIS का वार्ड है. नेक्स्ट इसी MIS को वार्ड के लिए और क्या मॉड्यूल्स हैं इसमें, मेडिकेशन, ट्रीटमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन ट्रैकिंग, राइट. एडमिनिस्ट्रेशन ट्रैकिंग के लिए अलग सा मॉड्यूल बनाया हुआ है. प्रिस्क्रिप्शन एंट्री, वेरिफिकेशंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन लॉजिंग, बारकोड स्कैनिंग फॉर पेशेंट्स, ड्रग मैचिंग टू रिड्यूस मेडिकेशन एरर्स, राइट. अलर्ट्स फॉर ड्रग इंटरैक्शन, एलर्जीज और मिस्ड डोजेस. तो ये सारी चीजें आपके ट्रीटमेंट से रिलेटेड हैं, राइट. ट्रीटमेंट के लिए जो भी आप ट्रैकिंग यहाँ पे बनाएंगे, क्या क्या आप प्रिस्क्राइब कर रहे हो, उसके वेरिफिकेशन के लिए आपने क्या किया हुआ है, और जो भी हॉस्पिटल पे चलते हैं ये टास्क, तो इन सबको ऑटोमेटेड करना है, राइट. तो ये सब ऑटोमेटेड होंगे. जो पहले मैनुअली होता था, फाइल सिस्टम में होता था, या एक पर्सनल कंप्यूटर पे आप अपने रख लेते थे, तो वो भी अब फाइल सिस्टम के अंदर ही आएगा. मीन सपोज मेरा एक कंप्यूटर है, मेरे पास अपने कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, मैं कुछ MS एक्सेल पे डेटा सेव करके रख लेती हूँ आज का, कल का, और सेव करके चलती हूँ, और जब भी कोई मुझसे मांगता तो उसको मेल के थ्रू सेंड कर देती हूँ सब. तो ये एक मैनुअल तरीका है काम करने का, इसे आप ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं बोल सकते, राइट. कीप इन द माइंड कि ये चीजें नहीं है ऑटोमेटेड, ये कोई सॉफ्टवेयर सिस्टम नहीं है, ये मैनुअली काम है, इसको भी मैनुअली ही बोलेंगे हम, क्योंकि मेरा डेटा मेरे पास है, मेरे सिस्टम पे है. जब आपने मुझे मांगा, पर्सनली मुझे बोला, तो मैंने बोला कि हाँ मेरे पास है कल का डेटा, आज तक की मैंने सारा रिकॉर्ड बनाया है, मैं आपको सेंड कर देती हूँ, और अपना ईमेल दीजिए, व्हाट्सएप दो, या कोई ऐसा मीडियम, आई एम गोइंग टू सेंड यू दैट डेटा, तो आपको मिल गया वो डेटा. तो आप इस चीज को, इस तरीके की टेक्नोलॉजी को हम सॉफ्टवेयर सिस्टम नहीं बोले, इसे MIS नहीं बोलेंगे. ठीक है, इस तरीके से तो काम चल रहा है काफी सालों से, राइट. बट इट इज नॉट एन MIS टाइप ऑफ सिस्टम. MIS मीन्स अ सेंट्रलाइज्ड सिस्टम जहां काम ही ऑटोमेटेड होगा सारा. एवरीबडी कैन एक्सेस दैट सिस्टम. उस
इस एमआईएस सिस्टम को वहां के कोई भी एम्प्लॉय क्या है एक्सेस कर सकता है जिसको अथॉरिटी होगी। रोल बेस्ड अथॉरिटी मैंने कल बताया था आपको, रोल बेस्ड एक्सेस इंफॉर्मेशन होती है यहाँ पे, जो कि सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है। रोल बेस्ड मीन सपोज आप भी एम्प्लॉय हो, मैं भी एम्प्लॉय हूँ, मेरा कुछ और रोल है, आपका कुछ और रोल है, तो हमें रोल बेस्ड एक्सेस प्रोवाइड की जाएगी इस बड़े एमआईएस सॉफ्टवेयर में। जो मेरा रोल होगा उसी से बेसिस मुझे एक्सेस मिलेगा, राइट। बट काम सारा ऑटोमेटेड होगा, मेरा मॉड्यूल आपसे इंटरेक्शन करेगा, क्योंकि हो सकता है मैं सेल्स की हूँ, आप परचेजिंग के हो, दो डिपार्टमेंट से, तो सेल्स वाला परचेजिंग से इंटरैक्ट कर सकता है, तो हम आपस में इंटरैक्ट कर सकते हैं, वो इंटरेक्शन अथॉरिटी प्रोवाइडेड होगी। तो ये सारा एनालिसिस होता है, एनालिसिस के बाद ये सॉफ्टवेयर बनते हैं, राइट। सारा कुछ एनालिसिस होता है, वर्क फ्लो एनालिसिस होता है। अगर आप इससे पहले की यूनिट्स में हमने आपको सिस्टम बताया भी था, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरह ही हमारे सॉफ्टवेयर बनाने की भी इंजीनियरिंग होती है, जिसमें एक पूरा एनालिसिस होता है कि वर्क फ्लो मतलब क्या क्या टास्क है और कैसे होने हैं वो टास्क, राइट। तो वो सब चीजों को एनालिसिस करके, इंफॉर्मेशन गैदर करके, तब जाके ये सारे मॉड्यूल डिजाइन होते हैं। फिर मॉड्यूल्स को देखा जाए, जैसे सपोज अभी मैं यहाँ पे आपको इतने सारे मॉड्यूल्स बता रहे हैं, 7, 8, 9 मॉड्यूल्स हैं, आई थिंक 10 मॉड्यूल्स है, 10 मॉड्यूल्स हमने बताए एक वॉर्ड एमआईएस सिस्टम के लिए। तो ये 10 मॉड्यूल्स का पूरा एनालिसिस किया होगा एनालिसिस टीम ने। तो एनालिसिस टीम ने हर एक मॉड्यूल को डॉक्यूमेंट किया कि ये एक मॉड्यूल चाहिए जिसमें ये सारे टास्क होंगे, और ये मॉड्यूल अपने आप में अलग होगा, और इन लोगों को इसको एक्सेस करने की अथॉरिटी होगी। इस तरीके से अगला मॉड्यूल ये होगा, और ये दो मॉड्यूल आपस में इंटरैक्ट करेंगे, राइट। ये सारे मॉड्यूल आपस में इंटरैक्शन कुछ कुछ बेसिस पे करेंगे, राइट। हो सकता है हम कुछ कुछ इंटरफेस दे रहे हैं, कुछ चीजें हाइड कर रहे हैं किसी दूसरे से, तो वो क्यों कर रहे हैं वो डिपेंड करता है आपके एनालिसिस के वक्त आपने कैसा सॉफ्टवेयर मॉड्यूल डेवलप करना है। तो इस तरीके से फिर ये हमारा सॉफ्टवेयर बनता है, और इसमें सारा काम ऑटोमेटेड होता है, बट है सारा सेंट्रलाइज्ड, बिकॉज सारा डेटा एक सेंट्रल डेटाबेस में स्टोर होता है। तो जब भी आप डेटा एक्सेस करोगे, सपोज मैं सेल्स की हूँ, तो मैं देखना चाह रही हूँ कितनी सेल्स हुई है, क्योंकि मैं ही हूँ उसकी हेड और मुझे एक्सेस है अपना देखने का, हम सेल्स के, तो मैं देख सकती हूँ अपनी सारी सेल्स कितनी है। मैं ही नहीं देख सकती हूँ, ये सारा डेटा एक सेंट्रल डेटाबेस में भी स्टोर है। किसी और को अगर अथॉरिटी अपने डिपार्टमेंट से देखने की मिले तो वहां से भी देख सकता है। जैसे ओनर होता है, जो अपर लेवल मैनेजमेंट टीम होती है, उनको अथॉरिटी जाती है, तो दे कैन एक्सेस एवरी डिपार्टमेंट, एवरी मॉड्यूल, राइट। तो वो पर सारे लोग डेटा एक्सेस एक्चुअल में कर कहां से रहे हैं, उसी सेंट्रल सिस्टम पर है सारे, राइट। दो दे हैव डिफरेंट टर्मिनल्स बट दे आर वर्किंग ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, दे आर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, बट उनके इंटरनल्स अलग अलग, मतलब टर्मिनल्स अलग अलग है। टर्मिनल मीन्स दे हैव इनपुट एंड आउटपुट फैसिलिटी, दे हैव राइट एक्सेस, वो एक टर्मिनल्स है, और बाकी सारे लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, तो वो एमआईएस का प्लेटफॉर्म है। तो इस तरीके से इसके मॉड्यूल्स दिए, जैसे इन्वेंट्री, मेडिकेशन और ट्रीटमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रैकिंग, तो ये एक अपने आप में बिल्कुल अलग मॉड्यूल है जो केवल मेडिकेशन और ट्रीटमेंट की फैसिलिटी के लिए प्रोवाइड किया गया है, राइट। तो यहाँ पे पेशेंट को भी एक्सेस दी जाती है। देखो, पेशेंट अपने आईडी से, अपने नंबर से उनको एक्सेस दी होगी, एक विंडो खुलेगी, पेशेंट विल एंटर हिज और हर ID number, so that window will be open. Patient can see the bill or doses, her treatment, her his or her physician suggestions, right? ऐसा भी हो सकता है ये सब उसको मिले, और if payment he or she wants to give the payment online on this platform, तो वो उससे बारकोड स्कैनर के थ्रू या जो भी उनको फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है वहां उसके थ्रू वो उसे कर सकता है। तो इस तरीके का जो ये अपने आप में मॉड्यूल है, ये दूसरे मॉड्यूल से डिफरेंट है, क्योंकि इसमें पेशेंट को आप एंट्री दे रहे हो, बाकी मॉड्यूल्स में नहीं दे रहे हो। तो ये सब चीज एनालिसिस के बाद बनाई गई है। इसी तरीके से जैसे इन्वेंट्री एंड सप्लाई चेन ट्रैकिंग है। इन्वेंट्री एंड सप्लाई चेन ट्रैकिंग मीन्स ये स्टॉक लेवल के लिए है, राइट, उसकी मॉनिटरिंग के लिए कि क्या क्या कंज्यूमेबल चीजें हैं उसमें वार्ड लेवल पे, राइट। तो वो सब चीजें आपकी मॉनिटर करने के लिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट और इन्वेंट्री, ये अपने आप में डिफरेंट मॉड्यूल है। ऑटोमेटिक रिप्लेसमेंट रिक्वेस्ट टू सेंट्रल स्टोर, सपोज यहाँ पे इन्वेंट्री सेटअप हो रहा है, आपके पास कुछ चीजों की कमी हो गई, जैसे कि होता है ना कि वो नर्सिंग वार्ड पे बहुत सारे इक्विपमेंट की जरूरत होती है, बहुत सारे मेडिकेशंस की जरूरत होती है, टूल्स की जरूरत होती है,
राइट। तो हो सकता है अभी खत्म हो गई कोई चीज, तो ऑटोमेटिक सेंट्रल स्टोर पर ये रिक्वेस्ट पहुंच जाती है और स्टोर में उस चीज की पहले से ही क्या करते हैं कि बिफोर हैंड वहां पे सप्लाई कर दी जाती है। बट अगर ऐसा नहीं होता तो कभी ये प्रॉब्लम आ सकती थी कि स्टोर पे भी नहीं है वो चीज, तो वहां पर फिर अननेसेसरी डिले होता है, तो वो एडवर्सली इफेक्ट करता है हॉस्पिटल को भी, पेशेंट को भी और स्टाफ को भी। तो वो चीजें यहाँ पे क्या होती है, एरर लेस हो जाती है। ट्रैकिंग यूजेस ट्रेंड्स फॉर बजटिंग एंड वेस्ट मिनिमाइजेशन, और यहाँ से वो भी ट्रैक कर सकते हैं हम कि क्या बजट था हमारा और कुछ वेस्ट क्या हुआ है, कितना वेस्ट हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो वेस्ट मिनिमाइजेशन होगा तो ऑफ कोर्स फिर से एफिशिएंसी बढ़ेगी आपकी। ये मॉड्यूल इन्वेंट्री एंड सप्लाई चेन ट्रैकिंग का है। बेड ऑक्यूपेंसी एंड यूटिलाइजेशन डैशबोर्ड, यहाँ पे बेड के लिए आपकी जो बेड ऑक्यूपेंसी और कितने ऑक्यूपाइड है, कितनी जरूरत है, ये सारा वार्ड हॉस्पिटल सिस्टम के लिए एमआरएस बना रहे हैं। तो रियल टाइम स्टेटस ऑफ ऑक्यूपाइड, अभी कितने ऑक्यूपाइड है, वैकेंट कितने हैं, रिजर्व बेड्स कितने। सपोज इमीडिएट कोई पेशेंट एंट्री कर रहा है, जैसे हुआ था ना पैंडेमिक के टाइम पर कहीं पे बेड ही नहीं मिल रहे थे, तो बहुत ये हो रहा था कि अगर हम ऑनलाइन देख सकते थे कि एक भी बेड खाली होता है तो ऑनलाइन इमीडिएट रियल टाइम आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, यू कैन एडमिट दैट पेशेंट, राइट। तो आपके पास इन्फॉर्मेशन अभी है या अभी बेड खाली हुआ है या विद इन अ मोमेंट होने वाला है या कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन या नहीं है, है? तो वो रियल टाइम इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास होगी तो आप उसका बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो, राइट। और आगे की प्लानिंग कर सकते हो, फॉरकास्टिंग कर सकते हो पहले से, और या पहले से ही फॉरकास्टिंग हो जाती है कि अब प्लस इतने बैग्स बचे हुए हैं, तो पहले से अरेंजमेंट हो जाता है। तो ये सब चीजें ऑटोमेटेड होने के बाद ही हुआ। अदरवाइज क्या होता है, अननेसेसरी डिले के कारण हॉस्पिटल्स की एफिशिएंसी हमेशा लूज करी है। कोई भी हॉस्पिटल अगर आप बोलते हो कॉमन में, अगर हम देखें, बात करें, एक सर्वे करें, किस हॉस्पिटल को अच्छा माना जाएगा, किस हॉस्पिटल को बुरा है, कितने पॉइंट्स किसी को मिलेंगे, तो वो ऑन द बेसिस ऑफ दीज थिंग्स ही होता है। कहीं इमीडिएट आपको ट्रीटमेंट मिल रहा है, इमीडिएट बेड मिल रहा है, इमीडिएट हो रहा है, तो आप उस हॉस्पिटल को हमेशा अच्छा बोलते हो, राइट। और कहीं अननेसेसरी थोड़ा सा भी डिले होता है, बिकॉज पेशेंट नीड्स इमीडिएट अटेंशन, राइट, पेशेंट नीड्स इमीडिएट अटेंशन। तो वहां पे इमीडिएट अटेंशन के लिए आपको इमीडिएट रेस्पॉन्सिव होना पड़ेगा, इमीडिएट डिसीजन मेकर बनना पड़ेगा, और इमीडिएट डिसीजन मेकर के लिए आपके पास रियल टाइम इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। रियल टाइम मीन्स ऑनलाइन, क्विक, एक्ट इंस्टेंट और अपडेटेड इंफॉर्मेशन, और वो आपको मिलेगी इस तरीके के एमआरएस सॉफ्टवेयर से, राइट। और इसमें थोड़ा सा भी अननेसेसरी डिले होता है तो अपने आप ही हॉस्पिटल की एफिशिएंसी लूज होने लगती है, राइट। तो ये जितने भी मॉड्यूल्स हैं, these are very important modules. You can learn them and you can write with when any case study can come, ki how to automate or what are the uses of MIS in a hospital. If this problem is going there, suppose a case study has been given to you, so that time you can write all these modules and their importance to relate on that case, right? तो वहां पे केस स्टडी भी आप अच्छे से कर सकते हो। इंसिडेंट रिपोर्टिंग एंड क्वालिटी इंडिकेटर, ये अभी जो मैं समझा रही हूँ कि अगर डिजिटली आपके पास सारी इंफॉर्मेशन है तो आप ये सब चीजें, क्वालिटी इंडिकेटर है वो आपके लिए, क्योंकि आपको इमीडिएट रिपोर्ट मिल रही है, और ये रिपोर्ट किसी भी तरीके की रिपोर्ट हो सकती है, ठीक है, एडवर्स भी हो सकती है, एडवर्स इवेंट की, गुड इवेंट की, राइट। तो डिजिटल फॉर्म फॉर नियर मिस एंड एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग, ट्रैकिंग ऑफ हॉस्पिटल अक्वायर्ड इन्फेक्शंस, फॉल और सेफ्टी ब्रीचेस, राइट। तो ये क्वालिटी इंडिकेटर्स हैं जो आपके हॉस्पिटल की क्वालिटी के इंडिकेटर्स हैं, जो ये इंडिकेट कर रहे हैं क्या क्या एडवर्सली इफेक्ट हो रहा है अगर हॉस्पिटल पे हो रहा है। तो परफॉर्मेंस डैशबोर्ड होता है फॉर क्वालिटी एश्योरेंस के लिए, एक्रेडिएशन कंप्लायंसेस के लिए, राइट। होता है ना, जैसे कि यू कैन टेक दिस एग्जांपल, जैसे रिव्यूज आते हैं किसी सॉफ्टवेयर में, वो बैड भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं। तो वो रिव्यूज रियल टाइम होते हैं, आपके कस्टमर्स के होते हैं। शॉपिंग पे देख लो, एक रिव्यूज होते हैं आपके कस्टमर्स के, तो आप बेसिस ऑन दैट रिव्यूज आर प्योर रिव्यूज, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिव्यूज आप रिलाई करते हो ना उस ऐप पे कि हाँ ये शॉपिंग ऐप अच्छी है क्योंकि मैंने इसके रिव्यूज देखे थे,
ठीक है, तो वो एक तरीके का इंडिकेटर है उस ऐप के लिए, उस बिजनेस के लिए, उस ई कॉमर्स एप्लीकेशन के लिए। तो सेम इसी तरीके के कुछ इंडिकेटर्स यहाँ पे भी होते हैं बेस्ड ऑन दिस सॉफ्टवेयर, जो डिजिटल इंडिकेटर्स हम उसे कह सकते हैं, जो आपके एडवर्स इवेंट को भी रिपोर्ट करते हैं। क्या एडवर्स इवेंट थे आपके, उसको रिपोर्ट करते हैं। और इन्फेक्शन जो एक्वायर्ड है, मेनली ये हो सकता है इन्फेक्शन की कहीं बात चल रही हो, या क्यों फॉल कर रहा है आपका उस अचीवमेंट से नीचे फॉल कर रहे हो आप, सेफ्टी ब्रीचेस क्या है आपके। तो ये सबकी ट्रैकिंग भी इस इंडिकेटर से, मॉड्यूल से हो सकती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको कोई आपकी नेगेटिव चीजें बताएगा तो दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, देन ओनली यू आर एबल टू रेक्टिफाई दोज फ्लॉज, राइट। इफ यू आर अनअवेयर ऑफ द फ्लॉज, आपको पता ही नहीं है अपनी गलतियां, यू आर अनअवेयर ऑफ द these type of indicators, these type of safety breaches, right, which are adversely affecting your organization. So how will you rectify these things? How will you improve? So these are very important, right? So performance dashboards for quality assurance and accreditation compliance, एक performance dashboard भी बनाया जाता है जो आपकी quality assurance के लिए और accreditation, आपके क्या compliances हैं, कितना उनको आगे आपने बढ़ाया है, कैसे आप इनके साथ जुड़े हो, क्या नहीं हो रहा है, तो everything will be reported on that dashboard that is digitally. I have given the same example, correlate the example from the e-shopping. जब आप करते हो तो reviews एक तरीके का आपका indicator हो सकता है, but it's a short example. There may be so many kind of indicators are there, but reviews के भी एक one kind of indicator is there. Based on that reviews आप पता कर सकते हो कि वो ऐप कितनी अच्छी है। स्टार्स देते हैं कहीं पे, फीडबैक मांगा जाता है, पेशेंट्स का फीडबैक या फिर कस्टमर का फीडबैक, तो उसके बेसिस पे भी आपको पता चलता है कि आपकी ऐप या आपकी जो भी सॉफ्टवेयर सिस्टम ये एमआईएस आपने किया है, तो उसके बेसिस से आपको अपने हॉस्पिटल के बारे में पता चल सकता है। तो दिस मॉड्यूल इज ऑल्सो अवेलेबल इन दैट एमआईएस सिस्टम, इंसिडेंट रिपोर्टिंग एंड क्वालिटी इंडिकेटर मॉड्यूल बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन एंड अलर्ट सिस्टम। कम्युनिकेशन किसी के भी बीच में कम्युनिकेशन के लिए है, जैसे यहाँ पर कम्युनिकेशन हॉस्पिटल और अपने फिजिशियन और डिपार्टमेंट, इंटरनल डिपार्टमेंट के बीच में कम्युनिकेशन के लिए हमने एक मॉड्यूल सेटअप किया हुआ है एमआईएस में। इसे हम सिक्योर मैसेजिंग बिटवीन वार्ड स्टाफ, फिजिशियंस एंड एंसिलरी डिपार्टमेंट्स बोल सकते हैं। इनके बीच में एक सिक्योर मैसेजिंग हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकता है, किसी बात पे वर्चुअल मीटिंग हो सकता है, कॉन्फ्रेंसेस हो सकती है, बिकॉज ओनर्स या फिर जो भी आपके एडवाइजर कमेटी है, अपर स्टाफ है, अपर मैनेजमेंट है, if he or she wants to take any meetings, conferences, want to communicate securely, it's good, right? तो वो सब चीजें क्या होती हैं, आप इस सॉफ्टवेयर, एक ये जो मॉड्यूल है वो दिया हुआ है, इसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हो। Escalations, alerts for patient deteriorations based on early warning scores. तो इस तरीके के अलर्ट सिस्टम यहाँ पर अगर कोई आते हैं तो पेशेंट की जो डिटोरिएशन बेस्ड हो रहा है, जो गिर रही है हालत उसकी, पेशेंट की या हॉस्पिटल की भी कह सकते हैं, उस इन अलर्ट्स के थ्रू हम उसको एक्सेलरेट कर सकते हैं, राइट, बिकॉज अर्ली वार्निंग स्कोर्स को देखते हुए। इंटीग्रेशन विथ हॉस्पिटल पेजिंग और ओवरहेड अलर्ट्स, राइट, हम ओवरहेड अलर्ट्स और पेजिंग सिस्टम से जो इंटीग्रेटेड है हमारे, okay, so based on this communication or alert system we can get early warnings and we can check the scores of early warning scores. इंटीग्रेशन विथ हॉस्पिटल पेजिंग और ओवरहेड अलर्ट सिस्टम, इनके साथ भी ये मॉड्यूल आपका इंटीग्रेट रहता है। हॉस्पिटल पेजिंग सिस्टम मींस जो भी हॉस्पिटल का आपका पेज है, जो डैशबोर्ड टाइप का पेज है, और ओवरहेड अलर्ट सिस्टम्स यहाँ पे लगे हुए हैं, तो वो सब कम्युनिकेशन और अलर्ट सिस्टम के अंदर आपका आता है, राइट। सो नेक्स्ट मॉड्यूल इज हियर
that is data analytics and reporting. What is data analytics and reporting is here? Data analytics and reportings are daily, weekly and monthly what level operational report. ठीक है, डेटा एनालिटिक्स और रिपोर्टिंग एवरीडे की रिपोर्ट मिलनी चाहिए, जिसपे वो एक अलग मॉड्यूल है आपका जिससे आपने डेटा रिपोर्टिंग बना दिया, या वीकली आप चाह रहे हो कि आई कैन गेट वीकली रिपोर्ट्स, डेली रिपोर्ट्स, मंथली व्हाट लेवल ऑपरेशन, क्या क्या ऑपरेशंस हो रहे हैं यहाँ पे, इसकी आप दोगे वहां पे, तो ये चीज daily key performance indicators, key KPIs are there, key performance indicators, these are also indicators, admission rates, discharge turnaround, कितने patients की entry हुई है, discharge turnaround क्या है, medication error rates क्या है, infection rates क्या है, तो ये सारा भी as an analysis हम यहाँ पर दे सकते हैं. Export of aggregated ward data to hospital wide MIS for strategic planning, right? So these are some modules which we have studied, which are very essential for any MIS or hospital wards. What are these modules? You just learn the name of the modules, like patient admission, transfer, यानी कि ADT modules, patient admission, transfer and discharge modules, electronic patient records, clinical documentation module, nursing and care workload management, diagnostic and laboratory information interface, medication and treatment administration tracking. Though these modules are somewhat similar in few points, but these are different modules because the access of different people are having different modules, right? Means अलग-अलग person को एक access role दिया जाता है, इसलिए अलग-अलग modules बने हुए हैं. Medication and treatment administration tracking, inventory and supply chain tracking, bed occupancy and utilization dashboards, incident reporting and quality indicator, communication and alert system, data analytics and reportings, right? See, this is the chart here. You can see the chart. What level MIS, different components. In this way, you can see diagnostic, laboratory information, care workload, but these are not limited to, right? आप इसके अलावा और भी अगर ward level hospital modules आपके hospital पे है, कुछ और भी आप ऐसा कुछ separate काम करना चाह रहे हो, जिसका एक module ही अलग बनाना चाह रहे हो, because MIS जो है customized way में बनता है, ये predefined नहीं है, यही module होंगे इसमें. It's a software, आप इसे कस्टमाइज्ड बना सकते हो जैसा आपको चाहिए, आपके हॉस्पिटल पे जैसी जरूरत है उस तरीके के कंपोनेंट्स आप वहां पे दिखा सकते हैं, राइट? सो दिस वार्ड लेवल MIS को सेंट्रल कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, राइट? इस वार्ड लेवल MIS को सेंट्रल कॉन्सेप्ट भी बोला जाता है हॉस्पिटल पे, बिकॉज ऑल द हॉस्पिटल इज रिवॉल्विंग अराउंड द हॉस्पिटल वार्ड. बिना हॉस्पिटल वार्ड के पूरा हॉस्पिटल क्या है, इज नथिंग विदाउट एनी हॉस्पिटल वार्ड. तो इसलिए इसे सेंट्रल कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं. द वार्ड लेवल MIS एक्ट एज द नर्व सेंटर ऑफ वार्ड ऑपरेशंस, राइट? लाइक clinical care is there, resource management is here, reporting into one continuous information flow. So what are the flow sequence here? If I say that आपने इतने सारे modules पढ़े, तो यहाँ पे information flow हो रहा है, एक module से दूसरे module में information flow चल रहा है. तो क्या है flow sequence? देखिए, what are the flow sequence here? Patients admissions, transfer and discharge module जो आपने पढ़ा था, यहाँ से स्टार्ट पॉइंट्स है. ये क्या करेगा, पेशेंट की सारी यहाँ से शुरू हुआ ना, पेशेंट आपके हॉस्पिटल पे आया तो पेशेंट की एंट्री यहाँ से शुरू करिए, तो ये स्टार्ट पॉइंट है आपका.
इसने सारी डेमोग्राफिक डिटेल कैप्चर करी, यही पढ़ा था हमने अभी। एडमिशन रजिस्टर किया, रीजन क्या, कौन सा बेड मिला, यहां से आपने शुरू किया। तो दिस इज द स्टार्ट पॉइंट ऑफ ये मॉड्यूल, आपका स्टार्ट पॉइंट है। इंफॉर्मेशन फ्लो यहां से निकली, फीड्स डेटा इंस्टेंटली टू द ईपीआर, उसके बाद ईपीआर में इलेक्ट्रॉनिक पेशेंट रिकॉर्ड में उसका डेटा फीड हो गया। बेड ऑक्यूपेंसी डैशबोर्ड में पता चल गया कि ये वाला बेड इस पेशेंट ने लिया हुआ है। जैसे ही पेशेंट की एंट्री हुई तो उसने फिलअप किया फॉर्म, ठीक है, उस फॉर्म पे ऑप्शंस आए होंगे, बेड कौन सा मिला, बेड नंबर लिखो, ये अपनी एंट्री लिखो, नेम वटेवर, सो सारी चीजें। तो बेस्ड ऑन दैट एंट्री अब जो इलेक्ट्रॉनिक पेशेंट रिकॉर्ड वाला मॉड्यूल है उसने ये जो डेटा यहाँ आया इलेक्ट्रॉनिक पेशेंट रिकॉर्ड में सेव हो गया यहाँ से। इसमें तो है ही पेशेंट एडीटी मॉड्यूल में तो है ही, पर यहाँ से फ्लो होके वो ईपीआर में भी चला गया, ठीक है। और उधर बेड ऑक्यूपेंसी डैशबोर्ड जो था वहां पे भी चला जाएगा कि कौन सा बेड, क्योंकि ये सब रिलेटेड है, ठीक है, इनको रिलेट कर रखा है। जैसे आप डेटा वहां फीड करोगे तो ऑटोमेटिकली वहां भी सेव हो जाएगा वो, ठीक है, क्योंकि ये सब लिंक कर रखे। वाइल डिजाइनिंग द सॉफ्टवेयर हमने ये सारे मॉड्यूल्स को लिंक किया हुआ है। यहाँ एंट्री होगी, दैट एंट्री विल बी सेव देयर ऑल्सो। यहाँ कोई मॉडिफिकेशन होगा जहां से डेटा एंट्री कर रहा है ऑपरेटर, तो ऑटोमेटिकली वहां पे वो चीज मॉडिफिकेशन हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक पेशेंट रिकॉर्ड से जो डेटा आया, जो क्लिनिकल डॉक्यूमेंटेशन है, अब लाइव पेशेंट फाइल बनेगी, अपडेट होगी, ठीक है। वहां से डायग्नोस्टिक वाले मॉड्यूल पे जा सकती है, लैब इंटरफेस वाले मॉड्यूल पे जा सकती है, मेडिकेशन ट्रैकिंग पे जा सकती है, ठीक है। और वहां से नर्सिंग एंड केयर वर्कलोड मैनेजमेंट भी एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उनके पास पेशेंट की एंट्री आ जाएगी, किस पेशेंट के लिए क्या काम है, उनका वर्कलोड ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन दैट पेशेंट एंट्री, पेशेंट की एंट्री के साथ ही उनका वर्कलोड भी ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो कम्युनिकेशन अलर्ट सिस्टम भी वहां से शुरू हो जाएंगे, डायग्नोस्टिक शुरू हो जाएगा, ठीक है, रिटर्न रिसीव्स टेस्ट ऑर्डर्स, ईआरपी, जो भी उससे रिलेटेड मॉड्यूल्स हैं आपके, कम्युनिकेशन अलर्ट्स हैं, क्योंकि ये सारी चीजें पेशेंट सेंटर्ड है ना। जैसे एक पेशेंट ने एंट्री करी, सारे मॉड्यूल देखो एक्टिवेट होते जा रहे हैं। जैसे जैसे पेशेंट आगे को बढ़ रहा है वो इन्फॉर्मेशन फ्लो बाकी मॉड्यूल्स पे भी ऑटोमेटिकली ऐड होते जा रहे हैं, ठीक है। मेडिकेशन ट्रीटमेंट किससे चला, कितने टाइम चला, किसने चलाया, क्या स्टॉक है, क्या क्या जरूरत पड़ी है उसको, स्टॉक से कोई चीज आई है अगर, तो वहां स्टॉक में एंट्री देखो, उस पर्सन को ट्रीट करने के लिए स्टॉक से जो भी ऑपरेटर्स आए, टूल्स आए, इंजेक्शन आए, तो उनकी जहां इन्वेंट्री होगी वहां से वो कम हो जाएंगे, तो वो वाला इन्वेंट्री मॉड्यूल भी एक्टिवेट हुआ, ठीक है। तो है ना सारी चीजें ऑटोमेटिकली लिंक। मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ट्रैकिंग भी वहां पे ऑटो आपका करेक्शन या ऑटो एडिशन, ऑटो अपडेशन होना शुरू हो गया। इन्वेंटरी और सप्लाई चेन मैनेजमेंट की ट्रैकिंग पे भी फर्क पड़ा, वो भी मॉनिटर करने लगा, वार्ड लेवल कंज्यूमेबल कितना कंज्यूम किया, सब ट्रिगर हो जाती है वहां पे चीजें, कोई रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट ट्रिगर हो जाती है। इन्फॉर्म डेटा, मतलब एक लाइव सेशन शुरू हो जाता है जैसे ही पेशेंट एंट्री करता है, ठीक है, एक साइकिल शुरू हो रही है, एक तरीके इट्स अ काइंड ऑफ साइकिल और इंटरेक्शन मॉड्यूल। जैसे हर जगह एक लिंक बना हुआ है, तो जैसे ही पेशेंट ने एंट्री करी, जैसे पेशेंट एंट्री वाले मॉड्यूल से शुरू हुआ, तो सारे ही मॉड्यूल एक्टिवेट होने लगते हैं और होते ही रहते हैं, ये साइकिल चलती रहती है। पेशेंट आ रहे हैं, एंट्री हो रही है, जहां जहां एंट्री उसकी इंफॉर्मेशन फ्लो आगे आगे बढ़ती जा रही है। जितनी भी मॉड्यूल्स हमने एमआईएस में बनाए वो सारे एक्टिवेट होते जा रहे हैं और उन पे इंफॉर्मेशन फ्लो चलता जा रहा है, ठीक है, वो अपना वर्किंग प्रोसीजर को आगे बढ़ा रहे हैं। इन्वेंटरी सप्लाई चेन वाले ने डेटा एनालिटिक्स यूज ट्रेंड्स, बेड ऑक्यूपेंसी एंड यूटिलाइजेशन डैशबोर्ड में भी फ्लैश होने लगेगा, ठीक है। जैसे सपोज उसने बेड कंज्यूम किया तो अभी उस डैशबोर्ड में लिखा था कि 1000 बेड्स आर रेस्ट, अभी ऑक्यूपाइड नहीं है। जैसे एक ने किया तो उसकी कम हो गए, दो ने किया तो वो कम होते गए, तो वहां पे ऑटोमेटिकली अपडेट होता जा रहा है। नोबडी इज गोइंग टू अपडेट, ये सब ऑटो अपडेट्स हो रहा है, क्योंकि एक जगह एंट्री करने से बहुत ज्यादा जगह इफेक्टेड होता है, मतलब वो सारी आपस में इंटीग्रेटेड है। That is why I'm saying that it's an integrated central software. तो इसी तरीके से आपका इंसिडेंट रिपोर्टिंग एंड क्वालिटी इंडिकेटर है। कम्युनिकेशन एंड अलर्ट मींस जैसे ही कोई पेशेंट की एंट्री होती है तो उसने जो भी मेडिकेशन कराया, जितने दिन रहा, जितने भी बेड ऑक्यूपाइड किए, जिस नर्सेस ने जो भी वर्कलोड उसके लिए फॉलो किया, वो सारे मॉड्यूल्स में ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा।
जैसे जितने भी हमने मॉड्यूल्स बनाए हैं, इन मॉड्यूल्स की जो वर्क लिस्ट बनाई थी हमने, जो अंदर इसमें काम हो रहा है, वो उस पेशेंट की एडमिशन होने से ही एक्टिवेट होना शुरू हो गए। जैसे इंसिडेंट रिपोर्टिंग एंड क्वालिटी इंडिकेटर बताने लग गया। कैप्चर सेफ्टी, क्या कैप्चर करेगा इंसिडेंट से? 8th वाला मॉड्यूल है आपका कि इंसिडेंट रिपोर्टिंग एंड क्वालिटी इंडिकेटर है ये, ठीक है। तो जो भी इंसिडेंट हो उसने उसकी सेफ्टी इवेंट को कैप्चर किया। कोई इन्फेक्शन रेट से उसको देखा कि इन्फेक्शन रेट इसका पहले ज्यादा था, अब और कम हुआ कि और ज्यादा हो गया, ये फॉल कर रहा है कि राइज कर रहा है, ठीक है। तो वो इंडिकेटर है। सेंड्स डेटा टू डेटा एनालिटिक्स फॉर क्वालिटी मॉनिटरिंग, और यहाँ से डेटा सेंड हो जाता है डेटा एनालिटिक्स को कि आप देखिए इसकी क्वालिटी मॉनिटरिंग करिए, ठीक है। इस तरीके से कम्युनिकेशन और अलर्ट सिस्टम भी अलर्ट हो जाते हैं। सारे मॉड्यूल आपस में कम्युनिकेट करने लगे, सिक्योर मैसेजिंग करने लगे, अलर्ट्स डालने लगे, अर्जेंट अपडेट्स होने लगी, राइट। अगर कोई पेशेंट डिटोरिएट कर रहा है, मतलब गिर रही है उसकी हालत और गिरते जा रही है, ठीक है, तो उसको कैसे पहुंचना है, राइट स्टाफ को इंस्टेंटली कैसे अलर्ट करना है, तो ये कम्युनिकेशन के थ्रू होने लगा, ठीक है। डेटा एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग एग्रीगेट्स डेटा फ्रॉम ऑल मॉड्यूल्स, produces ward performance dashboard, compliance reports and feeds hospital wide MIS। तो जो डेटा एनालिटिक्स यहाँ पे इनका रोल बहुत है। अब ये सारे डेटा एनालिटिक्स क्या करेंगे, सारे मॉड्यूल से इंफॉर्मेशन को एग्रीगेट करेंगे, एक परफॉर्मेंस लेवल की रिपोर्ट बनाएंगे, डैशबोर्ड से भी इंफॉर्मेशन लेंगे, ठीक है, और उस रिपोर्ट को एज एन फीडबैक MIS पे रखेंगे और MIS का फीडबैक करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें आपकी MIS इन अ वार्ड, हॉस्पिटल वार्ड में MIS कैसे सेटअप होता है, क्या क्या उसके मॉड्यूल्स हैं, क्या मॉड्यूल सारे काम करते हैं, कैसे ये मॉड्यूल्स आपस में इंटीग्रेटेड हैं, कैसे इनकी एक साइकिल बनी हुई है, मतलब कैसे इनमें इंफॉर्मेशन फ्लो का सीक्वेंस क्या है, ये सब हमने आज पढ़ा। टुडे वी विल स्टडी टिल हियर ओनली। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क।